Welcome once again, everybody present here. Children, now I am going to start the new topic, and the new topic is economic growth and democracy. आर्थिक विकास और प्रजातंत्र. Children, as the chapter is all about discussing the three aspects in terms of its outcome, means if a country is being governed under a democratic rule, what sort of resultants may prevail there, what sort of outcomes may be there. अगर कोई देश में प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है तो वहाँ किस किस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं. पहला तो हमने राजनीतिक पॉलिटिकल मतलब आउटकम देखना कि अगर वो राजनीतिक रूप से वो किस तरह की प्रणाली देती है, तो डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. एक जवाबदेह, जिम्मेवार और वैध शासन प्रणाली प्रदान करती है. एंड देन वी हैव टू सी इट्स इकोनॉमिक आउटकम आल्सो कि अगर किसी देश में प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली चल रही है तो वहाँ पर किस तरह का आर्थिक परिदृश्य होगा. इकोनॉमिक विकास और इकोनॉमिक इक्वलिटीज दो वर्ड है. आर्थिक विकास और आर्थिक असमानता जो है उसको वो किस तरह से वहाँ पर वो मतलब प्रदान करती है, किस तरह से उसको वो एड्रेस करती है, किस तरह का वहाँ परिणाम देखने को मिलता है आर्थिक क्षेत्र में और आर्थिक असमानता के क्षेत्र में. और तीसरा हम लोग सोशल डिफरेंसेस के बारे में देखेंगे, सोशल आउटकम. तो नाउ इट इज़ टाइम टू डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक सिनेरियो वेयर एवर द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अंडर rule. As we know that if democracy is going to provide a better government, it should have also a better economic development wherever it is making its rule. सो जहाँ कहीं भी प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली चल रही है वहाँ पर अच्छा गवर्नमेंट भी ये देती है और वहाँ पर अच्छा आर्थिक विकास भी होना चाहिए. बट इन प्रैक्टिकल वी फाइंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट गोइंग टू फुलफिल द economic growth of a country at the expectation level. It seems to be very worry to us. ये बहुत चिंताजनक बात होती है कि अगर अच्छा सरकार देती है तो अच्छा आर्थिक विकास भी करे. और अगर हम पिछले 50 सालों का अगर तुलना करें डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, तो हम यहाँ पाते हैं कि पिछले 50 सालों में 1950 से लेकर 2000 के बीच में जहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, डिक्टेटर गवर्नमेंट थी, तानाशाही गवर्नमेंट थी, वहाँ पर आर्थिक विकास थोड़ा ज़्यादा हुआ है. वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब आर्थिक विकास हुआ है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में. तो दिस इज़ अ वेरी वॉरिंग थिंग टू अस. ये हमारे लिए बहुत चिंताजनक विषय है. बट दैट ओनली वन फैक्ट is not going to make the democratic government unrealistic and unpreferable. We should also know that economic development of a country does not depend upon the way the government is being run there. It depends many other aspect also: the size of population of that country, the available resources within that country, the economic status of the world, global economic status, and the government policies, and the cooperation and other aspects that country gets from its neighboring country. So we see that economic development does not going to be directly affected by the type of government there. It depends on other many other factors also. So it is not prudent to think that if democracy is going to provide a better government, it will also have a better economic development. And this is not only one fact that we should not assume democracy as a better form of government. We have come to know that there are many other factors like population size, global economic situation, availability of resource in the country, that also affects the economic growth of the country. But although I am talking here that there is a slightly edge of dictatorship government in terms of economic development, but if we make comparison of dictatorship of government and democratic government in less developed countries, then here we find the situation of democracy
कंट्री इज़ नॉट वेरी वर्स। अगर हम कम विकसित देशों में, विकासशील देशों में, पिछड़े देशों में अगर डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तुलना करें तो वहाँ पर आर्थिक विकास में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। अगर हम लेस डेवलप कंट्रीज में इकोनॉमिक ग्रोथ के डिफरेंसेस देखें, किस में, एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, तो वहाँ हमें ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। So now here we see the facts that it is fair to expect the better government, but that will bring better economic development. It is not sure. तो डेमोक्रेसी बेटर गवर्नमेंट प्रदान करती है, लेकिन वो बेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगी ऐसा इसका मतलब निश्चित, मतलब ये मतलब श्योर एंड सर्टेन नहीं है। एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री डज नॉट डिपेंड अपॉन व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इट हैज, there are many other factors which are responsible to bring economic growth of the country। तो वही जो मैंने जो पहले चर्चा किया कि बेटर गवर्नमेंट देते ही तो बेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देगी, ऐसा कोई सर्टेनिटी नहीं है, और ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। लेकिन डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स अपॉन अदर थिंग्स आल्सो, लाइक कंट्री पॉपुलेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशंस, कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड प्रायोरिटीज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट 50 ईयर्स का जो डाटा दिया हुआ है कि इफ़ यू कंसीडर ऑल द डेमोक्रेसीज एंड डिक्टेटरशिप फॉर द 50 ईयर्स बिटवीन 1950 to 2000, dictatorship has slightly higher rate of economic growth. It seems to be worrying, but it is not going to make the total denial of democratic form of government. There is a significant difference in rate of economic growth between countries under dictatorship and democracy, but it is better to prefer democracy as it has several positive outcomes। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बहुत सारे अदर सेवरल पॉजिटिव आउटकम्स होते हैं। केवल एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेस पर इसको नकार देना मतलब इस बेईमानी होगी। और फिर भी यहाँ कहा जा रहा है कि आप देखिए कि डेमोक्रेसी को चाहने वालों का परसेंटेज क्या है हमारे यहाँ। देखिए आपका बांग्लादेश में 69%, इंडिया में 70%, नेपाल में 62%। आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग डेमोक्रेसी को चाहते हैं, और डिक्टेटरशिप को चाहने वालों की संख्या बहुत कम है। उसी तरह से हम यहाँ अगर देखते हैं मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ का, तो आप देखिए रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर डिफरेंट कंट्रीज। तो यहाँ पर देखिए ऑल डेमोक्रेटिक रिजाइन में इकोनॉमिक ग्रोथ होता है 3.9%, 3.95% पर एनम। ऑल डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में 4.42% है, ज़्यादा है। लेकिन पुअर कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप 4.34 एंड पुअर कंट्रीज अंडर डेमोक्रेसी 4.28। तो संसार के पूरे प्रजातांत्रिक देश और संसार के पूरे तानाशाही देशों की अगर तुलना करते हैं आर्थिक विकास के संदर्भ में, तब तो वहाँ मतलब देखते हैं कि थोड़ा 1% का लगभग अंतर आ जाता है, 1% के लगभग अंतर आ जाता है, ज़्यादा ही तानाशाही सरकारों और प्रजातांत्रिक सरकारों के बीच आर्थिक विकास के मामले में। लेकिन अगर गरीब देश के तानाशाह सरकार और गरीब देश के प्रजातांत्रिक सरकार की अगर तुलना करें, तो वहाँ हम देखते हैं कि ये आर्थिक विकास में अंतर ज़्यादा नहीं है। वहाँ पर केवल गरीब देशों के तानाशाही सरकार का आर्थिक विकास बता रहा है 4.34%, और गरीब देशों की प्रजातांत्रिक सरकार का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ बता रहा है 4.28%। Then as far as the economic outcome is comes, some data has been gathered, and here it has to make the judgment of democratic rule in respect of economic development and addressing the economic inequalities. So the following points show the relationship of democracy with economic growth and economic inequalities। तो अब कुछ पॉइंट्स यहाँ हैं, कुछ डाटा हैं जो ये हमें ये बताएंगे कि आर्थिक विकास और आर्थिक असमानता के मामले में डेमोक्रेसी या प्रजातांत्रिक सरकारों की क्या स्थिति है, क्या परिणाम मिलते हैं। डिक्टेटोरियल रिजाइम हैज़ हैड ए स्लाइटली बेटर रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बट व्हेन वी कंपेयर द रिकॉर्ड ओनली इन पुअर कंट्रीज देयर इज वर्चुअली नो डिफरेंस। तो अगर संसार के पूरे तानाशाही सरकार और संसार के पूरे प्रजातांत्रिक सरकार की तुलना करें, तो वहाँ तो हम पाते हैं कि तानाशाही सरकारों का इकोनॉमिक आर्थिक विकास थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन अगर गरीब देशों की तानाशाही सरकार और गरीब देशों की प्रजातांत्रिक सरकार की तुलना करें, तो वहाँ पर हमें डिफरेंस बहुत कम देखने को मिलता है। आप इस फिगर से आप देख सकते हैं।
उसके बाद इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, आर्थिक असमानता का जो बात है, देयर कैन बी अ वेरी हाई डिग्री ऑफ इनइक्वालिटीज विद इन डेमोक्रेसी में। प्रजातांत्रिक सरकार वाले देशों में एक चीज़ देखने को मिला है कि वहाँ रिच है तो बहुत रिच है, गरीब है तो बहुत गरीब है। वहाँ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बहुत मिलती है। देयर इज ऑफन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू द पूरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और जहाँ तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सबसे गरीब तबके की बात है तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी भी नसीब नहीं होती। ये डेमोक्रेसी का एक मतलब उतना ग्लूमिंग पिक्चर नहीं है। अब आप देख सकते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ के क्या पोजीशन है। साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। साउथ अफ्रीका में जो टॉप 20% पॉपुलेशन है उसके पास देश का पूरे इनकम का 64% है, और जो 20% सबसे नीचे का तबका है गरीब, उसके मात्र 2.5% है। तो आधा से अधिक देश का आय, देश की आमदनी में 20% लोगों के ही पास चला जाता है। 64% देश की आमदनी का हिस्सा मात्र 20% लोगों के पास चला जाता है, और जो 20% जो नीचे तबके हैं उनके पास मात्र 2.9 ही पहुंचता है। मतलब जो सबसे निचतम तक गरीबतम लोग हैं उनके पास आय बहुत कम है। ब्राज़ील में देखिए 63 है, रसिया में 53 है। यूएस अमेरिका इतना डेवलप नेशन कहा जाता है, वहाँ के टॉप 20% लोगों के पास 50% इनकम चला जाता है। मतलब 100 में टॉप 20 जो लोग हैं उनके पास देश की आमदनी का आधा चला जाता है, और जो निचले 20% लोग हैं उनके पास मात्र केवल 4%। तो ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बता रहा है कि मतलब देश में धनाढ्य वर्गों का इनकम कितना है। धनाढ्य वर्गों का मतलब जनसंख्या तो मात्र 20% है, लेकिन साउथ अफ्रीका में 50% से ज़्यादा इनकम जा रहा है, ब्राज़ील में 63% जा रहा है, यूएसए में लगभग आधा देश की आमदनी का हिस्सा मात्र 20% लोगों के पास जा रहा है, और जो 20% जो सब निचले तबके के लोग हैं उनके पास मात्र 4% है। इस मामले में थोड़ा सा हंगरी वगैरह का, डेनमार्क का पोजीशन ठीक है। तो इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ जो है, आर्थिक असमानता है, ये डेमोक्रेसी में काफ़ी विजिबल है, और इसका फेस जो है उतना चमकदार नहीं है। इस मामले में, आर्थिक इनइक्वालिटीज़ के मामले में डेमोक्रेसी काफ़ी पीछे है। उसके बाद अब रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, अगर इनइक्वालिटी को रिडक्शन घटाने की बात होती है, पॉवर्टी घटाने की बात होती है, तो वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करती है। ऑल इंडिविजुअल हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में राजनीतिक समानता की बात होती है। आर्थिक समानता को इंश्योर करने का प्रयास किया जाता है। आर्थिक असमानता तो है ही, लेकिन राजनीतिक रूप से सब समान होते हैं। सबके वोट का अधिकार एक ही होता है, 1 पर्सन 1 वैल्यू ऑफ वोट, चाहे वो अंबानी हो या चाहे कोई गरीब हो। बट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल्स इनटू द पॉलिटिकल एरिना ऑन एन इक्वल फुटिंग वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो हम देखते हैं कि राजनीतिक रूप से सबका एक ही अधिकार है, राजनीतिक रूप से सभी समान है, लेकिन जहाँ तक आर्थिक समानता की बात है वहाँ पर ऐसी बात नहीं है। डेमोक्रेसी डज नॉट अपियर टू बी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इक्वालिटीज। तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो है आर्थिक असमानता को ख़त्म करने में जहाँ जहाँ भी इनकी सरकारें चल रही है उसमें अभी पूर्ण रूप से सफल नहीं हुई है। प्रयास है, बहुत सारे गरीबी हटाने के कार्यक्रम चल रहे हैं, इकोनॉमिक्स इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन अभी उसमें फुल फ्लेज सक्सेस नहीं मिल पाया है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। इन स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच इंजॉय हाईली डिसप्रपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स वाले जो देश हैं वहाँ पर छोटी सी जनसंख्या, 20% जनसंख्या के पास देश का आधा से अधिक आमदनी चला जाता है। देयर शेयर इन टोटल इनकम इज इंक्रीजिंग, और देश की आमदनी में उनका आमदनी धनी जो थोड़ा सा जो उच्च तबका है 20%, उसकी आमदनी भी खूब बढ़ती जा रही है। पीपुल एट बॉटम ऑफ द सोसाइटी आर हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन। और जो देश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाले देश है उसमें जो बॉटम के 20% लोग हैं उनको बेसिक एमिनिटीज़ पूरा करने में भी, फूड क्लॉथिंग शेल्टर का भी प्रॉब्लम्स हो जाता है। यहाँ एक कार्टून से इस बात को समझाने का प्रयास किया गया है कि वेल आई लेफ्ट यू हाफ, वी आर यू वाई व्हाट आर यू ग्रीडी। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि द रिच टॉप 10%, ये टॉप 10%, ये शायद अमेरिका की बात है। तो टॉप 10% जो हैं लोग, रिच लोग हैं, उनके पास 50% इनकम चला गया, और जो 90% लोग हैं उनके पास
मात्र 50% गया। तो देश की मतलब इनकम का जो ये शायद वर्ल्ड लेवल का है कि वर्ल्ड लेवल पर जो 10% लोग हैं उनके पास पूरे वर्ल्ड की आमदनी का आधा चला जाता है, और 90% जो पॉपुलेशन उसके हिस्से में केवल आधा मिलता है। मतलब अगर एक केक है, फुल केक है, मान लीजिए पूरी देश वर्ल्ड की आमदनी एक केक है, तो फुल केक में आधा केक मात्र वर्ल्ड के 10% लोग ले गए। आधा केक हिस्सा केवल 10% पॉपुलेशन को ही मिला वर्ल्ड में, और आधा केक बचा उसमें 90% लोगों को मिला। तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की ये पोजीशन यहाँ बताया जा रहा है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मतलब इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया कि इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मामला है, इकोनॉमिक आउटकम का जो मामला है, जहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स चल रही हैं वहाँ पर थोड़ा सा हमें मतलब ज़्यादा मतलब शाइनिंग पिक्चर नहीं मिल रहा है। But we have to also know it that the economic growth of a country does not only depend upon the type of government there, but it also depends upon other factors like size of population, like availability of resources, like global economic condition and cooperation the country get from other countries. And we should also know it that democracy provides a condition, a situation to achieve the goal. Democracy provides a condition, a conducive condition to the government to achieve the goal. But it is ultimately the people who have to take efforts to achieve the goal. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक सिचुएशन एक प्रदान करती है, एक मतलब वो मतलब एक परिस्थिति प्रदान करती है स्टेबल गवर्नमेंट की, एक गवर्नमेंट की मतलब संभावना देती है, लेकिन वहाँ पर अन्य चीज़ें जो वहाँ की ज़रूरतें हैं उसको वहाँ की जनता को ही पूरा करना पड़ेगा, उन्हीं को एफर्ट लेना पड़ेगा. इट डजेंट मीन दैट इफ democracy brings a good government, it will also bring a good economic growth. And in last 50 years we have seen that the dictatorship government has slightly edged over democratic governments if we take in their comparison as a whole at the world level. But if we make a comparison between dictatorship government in poor countries and democratic country government in poor countries, then here we find that there is no much differences. And as far as the economic inequality is concerned, the democratic governments has not been successful in addressing the economic inequalities properly. The very less population of the country have a large proportion of the income in democratic countries. And we have seen this in many examples that how South Africa, USA, the top 20% population gets almost 50% and more than 50% of income of their income of the whole country, and the top less and the bottom 20% population marginally gets 4%, 3% income out of total income of the country. So okay, now we will discuss the social aspect, how social outcomes occurs in democratic form of government in a country, how the democratic government is going to address and tackle the social conflicts and social inequalities in the society. Okay.